हेलो बच्चों, वी आर स्टार्टिंग द चैप्टर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन and this is the part 1A of this chapter, and in this part we are going to study the introduction and types of random variables. समझ गए बच्चों? चलो अभी ऐसा है कि I want to motivate you. This chapter is a small chapter, not a big chapter like differentiation or indefinite integral or definite integration like that. So एक भी मार्क इसका जाना नहीं बनता है. In fact, you should not lose a single mark. I am guaranteeing you, if you see all my videos and if you just refer and understand all the solved examples in your textbook, especially Maharashtra board, out of 80 you must get minimum 75 marks. 5 marks you should get 80. 5 marks I am just giving for last minute some errors if you make, but you should avoid it. समझ गए बच्चों? चलो अभी ये चैप्टर में क्या है देखो. This chapter we are going to study in 3 parts. Part 1 is introduction, types of random variables, probability distribution of discrete random variables, probability mass function PMF, cumulative distribution function CDF. बहुत ही बड़े बड़े वर्ड है. In textbook the definitions are big English definitions. You will not understand, but you should understand the concept which I am trying to tell you in a very simple way. Then we are going to study probability distribution of continuous random variable. तो अभी देखिए यहाँ types of random variable में 2 हो गए, एक discrete random variable and continuous random variable. समझ गए बच्चों? Now most probably because all of us are going through the difficult situation of COVID-19, Maharashtra government has decided or Maharashtra board has decided that they will not ask any question on continuous random variable. समझ गए? So we are going to study discrete random variable, and in part 3 we will solve additional examples based on discrete random variable. I will also introduce this continuous random variable and we will also solve example, but please bear in mind, as per the notification, this is removed from the syllabus only for this year. Chalo, let us see some terms. Let us learn some terms. What is random experiment? What is sample space, which is denoted by S, capital S? What is random variable, which is denoted by capital X? What is event A, and what is probability of event A? समझ गए बच्चों? तो अभी एक हम लोग क्यूबिकल डाई होता है हमारे पास, हम लोग खेलते हैं ना, सापशीढ़ी खेलते हैं हम लोग या लूडो खेलते हैं. वी यूज द डाई विच हैज गॉट 6 फेसेस. तो रैंडम एक्सपेरिमेंट मीन्स व्हाट? के यू नो you will get one of those scores. Which score? You will get either 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6, but you don't know which score you will get, because all scores are equally likely. बराबर है? That is known as the fair die. Any score has got same probability of coming. So such experiment where possibility is equal for all those scores, but which score will come you don't know, but you know out of which it will come. 7 score will never come. समझ गए बच्चों?
तो रैंडम एक्सपेरिमेंट समझ गए आप, इट इज जस्ट एक्सपेरिमेंट वेयर देयर विल बी सम आउटकम्स एंड ऑल दोज आउटकम्स इफ आई राइट दैट इज नोन एज सैंपल स्पेस। समझ गए बच्चों? तो अभी देखिए यहां कौन सा है एक्सपेरिमेंट, थ्रोइंग ऑफ अ क्यूबिकल डाई। तो स्कोर क्या होएगा? इट विल बी आइदर 1 और 2 और 3 और 4 और 5 और 6। 8 तो नहीं हो सकता है। एंड दैट इज द सेट ऑफ नंबर्स which is known as sample space. So what is the number of elements in sample space? 6. 1 2 3 4 5 6। समझ गए? So ns is number of elements in the sample space. Now event A, I define event A as getting score more than 4. This is just event A I am defining as an example. तो क्या हो गया? 4 से बड़ा मतलब 4 नहीं चलेगा. Score should be more than 4. So it can be either 5 or 6. So event A में what will be the element in set 8A? 5, 6. तो number of elements in event A कितना हो गया? 2. 1 और 2. तो probability of event A, ये कैसे निकालते हैं हम लोग? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन अ सैंपल स्पेस। तो इवेंट ए में हमारा कितना है? 2/6। तो ये हमें मिल जाएगा 1/3। बराबर है? ठीक है, चलो आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल। यही इसी पेज पे लिखाता हूं ना। इवेंट बी, इवेंट बी स्कोर लेस देन 5। तो इवेंट बी क्या हो गया बच्चों? 5 से कम मांगता है तो मुझे 1 चलेगा, 2 चलेगा, 3 चलेगा, 4 चलेगा, 5 चलेगा क्या? नहीं, बिकॉज इट हैज टू बी लेस देन 5। इफ आई हैड सेड लेस देन और इक्वल टू 5 तो यहां 5 लेते थे। लेस देन 5 मतलब 4 तक ही आएगा। तो हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फेवरेबल टू बी कितने हो गए अभी? 4। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना? नंबर ऑफ एलिमेंट्स फेवरेबल टू बी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस एलिमेंट। तो यहां हो गया 4/6, दैट इज 2/3। समझ गए बच्चों? तो ये सब प्रोबेबिलिटी इतना सिंपल है टोटल सैंपल स्पेस निकालने का। एंड विच एवर इज द इवेंट दे हैव गिवन, उसको फेवरेबल कौन सा है इसमें वो लेने का और ये रेशो लेने का। समझ गए? चलो आगे चलेंगे। नाउ लेट अस टेक द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग 2 डाइस। अभी सैंपल स्पेस इतना सिंपल है क्या? नहीं। कोई कोई गेम में आप 2 यूज करते हैं ना, 2 डाई। तो अभी इसका सैंपल स्पेस क्या आएगा? देखो, पहले डाई में 1 आया, दूसरे में भी 1 आया। स्कोर पहले में 1 आया, दूसरे में 2 आया, पहले में 1 आया, दूसरे में 3 आया, पहले में 1 आया, दूसरे में 4 आया, पहले में 1 आया, दूसरे में 5 आया, पहले में 1 आया, दूसरे में 6 आया। नाउ यहां व्हाट आई हैव रिटन, फर्स्ट डाई गेव यू 2, second die gave you 1, first die gave you 2, second die gave you 2। और ये ऐसा सब लिख के यहां क्या है? both dies have given 6। तो हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस कितना है? 1 2 3 4 5 6। ये पूरा काउंट करेंगे तो आएगा 36।
समझ गए बच्चों? नाउ आई एम डिफाइनिंग इवेंट ए एज गेटिंग इक्वल स्कोर ऑन बोथ द डाइस. मतलब एक तो दोनों में 1-1 होना मांगता है, या दोनों में 2-2 होना मांगता है, या दोनों में 3-3 होना मांगता है, या दोनों में 4-4 होना मांगता है, या दोनों में 5-5 होना मांगता है, या दोनों में 6-6 होना मांगता है. बराबर है? तो नंबर ऑफ आउटकम विच इज फेवरेबल टू ए, मतलब विच इज सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन, कितना हो गया मेरा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. तो प्रोबेबिलिटी कितना आ गया? Na अपॉन n ऑफ s. तो 6/36 प्रोबेबिलिटी आया 1/6. समझ गए बच्चों? समझ गए? वेरी गुड. तो डेफिनेशन नोबडी विल आस्क यू. वो लंबा लंबा अंग्रेजी सेंटेंस बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं. यू नो हाउ टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी, यू नो व्हाट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट. समझ गए? चलो, नाउ यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग कि रैंडम वेरिएबल्स आर ऑफ टू टाइप्स. बराबर है? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. डिस्क्रीट मीन्स वेरिएबल कैन टेक पॉसिबल वैल्यूज फाइनाइट और काउंटेबल. अभी देखिए, हमारा ये जो एग्जाम्पल था, what are the values these variables is taking? 1, 1, 1, 2, 1, 3. These are all variables because these are the outcomes of the random experiment. So these are all countable. 36. बराबर है? अभी यहां देखिए, 1 डाई था तो क्या मिला हमें? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Can it give the score of 1.01? नहीं. Can it give the score of 2.7? नहीं. So that is discrete variable. तो इसका एग्जाम्पल क्या है बच्चों? इसका एग्जाम्पल मोस्ट फेमस इज throwing of a die. Now secondly, let me ask you one thing. Now I am doing an experiment of counting the number of stories for a building in the town. तो बिल्डिंग को स्टोरी कितना रहता है? 1 या 2 स्टोरीड या 3 स्टोरीड या 4 स्टोरीड या 5 स्टोरीड या 20 स्टोरीड. इट कैनॉट गिव 1.1 स्टोरी. उसको जो फ्लोर्स रहेंगे वो एक तो फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर. बराबर है? तो इट कैनॉट हैव 1.1 फ्लोर. यू कैनॉट टेल अ लिफ्ट फेलो दैट लिफ्ट मैन I want to go on floor number 7.1. He will get confused. वो बोलेगा एक तो 7वें माले पे जाओ, नहीं तो 8वें माले पे जाओ. समझ गए? So that is also the discrete variable. So number of floors in a building. Now there is, I am counting the number of students in your class or various classes who have failed in mathematics. बराबर है? तो कैसा रहेगा? There will be either 0 students who have failed in mathematics, or 1 student who have failed in mathematics, or 2 students who have failed in mathematics, or like that. Let us say 50 out of 70 students have failed in mathematics. It is taking discrete value 0, 1, 2, 4 like that. Can I say in this class 3.65 people, 3.65 students have failed in mathematics? No. Students fail can be either 3 or 4. समझ गए? So this is also discrete variable. Now continuous variable means it can take all possible values within a interval. Now let us say height of a student
height of students in a class. बराबर है. Now let us say मिनिमम हाइट जो सबसे शॉर्ट है उसका हाइट है 149 सेंटीमीटर और जो मैक्सिमम है उसका हाइट है 180 सेंटीमीटर. Now I can measure the height can be, if I got an instrument which can measure, I can write down 149.7 centimeter also. I can write 165.35 centimeter also. So this is a continuous random variable. समझ गए? If your instrument is accurate, I can also write 170.352 centimeter if I got a very accurate instrument. अभी यहां क्या है? It takes only discrete value. यहां it can take all possible values from interval of real number. अभी यहां इंटरवल कौन सा है? 149 से लेके 180 तक. So within this interval it can take any value. तो हमारा अभी जो स्टडी है that we are taking for discrete random variables. 2 या 3 फॉर्मूले हैं, बहुत ही सिंपल है. टेबल कैसा बनाने का ये आप इस वीडियो में समझा के ले लो. समझ गए? फॉर व्हाट? फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए टेबल नहीं रहता है. देयर इज अ डिफरेंट मेथड दैट वी विल स्टडी सेपरेटली. हालांकि जैसा मैंने बोला है इस साल इन व्हेन देयर विल बी एग्जाम इन 2021 दिस पोर्शन इज डिलीटेड. एनीवे चलो आगे. अभी देखिए थ्रोइंग ऑफ 2 डाई बराबर है तो कितना है? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4. ये हमारा आउटकम है. सो दिस इज अ रैंडम वेरिएबल. दिस स्कोर इज रैंडम वेरिएबल विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल X and these individual variable values are denoted by small xi. अभी यहां स्कोर कम से कम कितना होएगा बच्चों? 2. उससे ज्यादा होएगा 3, उससे ज्यादा होएगा 4, उससे ज्यादा होएगा 5, उससे ज्यादा होएगा 6, ज्यादा से ज्यादा स्कोर कितना होएगा? 12. सो आई हैव रिटन व्हाट ऑल वैल्यूज x कैन टेक. x मीन्स रैंडम वेरिएबल व्हेन आई एम थ्रोइंग 2 क्यूबिकल डाइस. 2 से लेके 12 तक. स्कोर 1 होएगा क्या? नहीं होएगा, क्योंकि दोनों में अगर 1 1 आया तो 2 स्कोर होएगा. 12 से ज्यादा होएगा क्या? नहीं, क्योंकि दोनों में मैक्सिमम स्कोर 6 6 आता है तो 12 ही रहेगा. अभी यहां NXi इसका मतलब समझा के ले लो बच्चों. क्या समझा के ले लो? स्कोर 2 आने के लिए व्हाट आर द फेवरेबल इवेंट्स? ओनली 1. ये छोड़ के कहीं भी स्कोर 2 नहीं आ सकता है. स्कोर 3 आने के लिए क्या है? इफ यू वांट स्कोर 3 देन इट कैन कम 2 1 1 2. तो ये 2 केस में स्कोर 3 है. स्कोर 4, दिस इज स्कोर 4, दिस इज स्कोर 4, दिस इज स्कोर 4. तो कितना इवेंट है स्कोर 4 आने में? वो स्कोर 4 का इवेंट में कितना एलिमेंट है? 3. तो यहां मैंने 3 लिखा. सो दीज आर द नंबर ऑफ इवेंट्स फेवरेबल, नंबर ऑफ एलिमेंट्स फेवरेबल टू इवेंट दिस 4. 5 4 1 चलेगा मुझे, 3 2 चलेगा, 2 3 चलेगा, 1 4 चलेगा. तो ये 4 आ गया. वैसा 12 for 12 I have got only 1. For 11 I have got only 2. 6 5 5 6. बाकी कहीं भी 11 स्कोर नहीं आता है. समझ गए? तो ये टोटल में करेगा
तो ये आएगा 36। टोटल को हम लोग सिग्मा बोलते हैं, समझ गए। अभी प्रोबेबिलिटी आउट ऑफ 36 ओनली 1 इज फेवरेबल टू गेट द स्कोर 2, तो यहां प्रोबेबिलिटी क्या आएगा 1/36। 2 आर फेवरेबल फॉर गेटिंग स्कोर 3, तो यहां प्रोबेबिलिटी आएगा 2/36। यहां प्रोबेबिलिटी कितना आएगा, दैट प्रोबेबिलिटी टू गेट स्कोर 4 विल बी 3/36. Probability to get score 5 will be 4 out of 36. Similarly, this will be 5/36, 6/36, 5/36, 4/36, 3/36, 2/36, 1/36. समझ गए? So if I add all these probabilities, I get sigma probabilities. You will get the answer 36/36. ये सबका एडिशन है, so it is nothing but 1. तो इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब हर एक वैल्यू ऑफ एक्स के लिए व्हाट आर द नंबर ऑफ फेवरेबल स्कोर एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इंडिविजुअल एक्स। समझ गए? इसको क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ दिस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन is probability mass function. probability mass function किसको बोलते हैं? जब भी ये सबका probability ऐड करके addition of all individual probability is 1 and only 1, nothing than 1, then only it is called probability mass function. समझ गए? मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी ऑफ दिस कैन बी ओनली 1. अभी यहां तो 1 किसका भी नहीं है, 1/36, 2/36 ऐसा ऐसा, और यहां किसी का भी प्रोबेबिलिटी निगेटिव नहीं है. प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी निगेटिव. समझ गए बच्चों? तो चीज याद क्या रखेंगे? सिग्मा पी आई इज इक्वल टू 1. पी आई is always greater than or equal to 0. 0 हो सकता है लेकिन निगेटिव नहीं हो सकता है. निगेटिव मतलब 0 से कम. अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो द गिवन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो टेबल है इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे. तो ये उसको क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन. समझ गए बच्चों? चलो आगे. अभी देखो, ये इन्होंने एग्जाम्पल 1 दिया है, ये एग्जाम्पल 2 दिया है और ये एग्जाम्पल 3 दिया है, और पूछा है वेदर द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज पीएमएफ और नॉट, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन और नॉट. समझ गए? अभी x का वैल्यू कैन बी 0, कैन बी निगेटिव ऑल्सो. समझ गए? बट प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी निगेटिव. अभी ये हमने डाई का एग्जांपल लिया, इसके लिए यहां निगेटिव नहीं आया, बट देयर आर सम एग्जांपल्स वेयर x कैन बी निगेटिव बट प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी निगेटिव. तो यहां पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव. अभी इसका ऐड करेंगे, कितना आया इसका एडिशन? 1 आया. तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया. सो बिकॉज पी आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड
सिग्मा पी आई, सिग्मा मतलब एडिशन ऑफ ऑल दीज इंडिविजुअल पी आई इज 1, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, सो दिस इज पी एम एफ, यस। समझ गए? अभी ये दूसरा एग्जांपल दिया है, यहां एक्स के कुछ वैल्यू है 2, 3, 4, 5, 10 वगैरह वगैरह। अभी यहां कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, पहला ही प्रोबेबिलिटी उसने कैसा दिया है, निगेटिव, तो दिस इज नॉट पीएमएफ। समझ गए बच्चों? अभी यहां देखो क्या है, x कैन बी एनीथिंग, x कैन बी निगेटिव, x कैन बी पॉजिटिव, x कैन बी 0 ऑल्सो। अभी यहां प्रोबेबिलिटी कैसा है, सब पॉजिटिव है, तो पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया, सो पी आई, ऑल पी आई आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब ये ऐड करेंगे 0.5 प्लस 0.4, वन है क्या, नहीं है, सो सिग्मा पी आई इज नॉट इक्वल टू 1, तो दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो गया, सो दिस इज ऑल्सो नॉट पीएमएफ। समझ गए बच्चों? चलो 1 मिनट जरा ये इसके तरफ देखो, ऑल 3 टेबल्स, बिकॉज यू शुड नो हाउ यू कैन डिफाइन पीएमएफ एंड नॉट अ पीएमएफ। सबका प्रोबेबिलिटी का एडिशन करेंगे तो 1 आना मांगता है, उसके पहले देखना है कोई भी प्रोबेबिलिटी निगेटिव नहीं होना मांगता है। समझ गए? कभी कभी ऐसा भी एग्जांपल देंगे, कुछ प्रोबेबिलिटी निगेटिव रहेंगे, कुछ प्रोबेबिलिटीज पॉजिटिव रहेंगे, एडिशन 1 रहेगा, वो पीएमएफ है क्या बच्चों? नो, एवरी प्रोबेबिलिटी, ऑल द प्रोबेबिलिटीज शुड बी पॉजिटिव और 0, निगेटिव एक भी रहेगा नहीं चलेगा। समझ गए? आई एम पर्पसली टेकिंग दिस स्लोली, देख लीजिए। देखा? चलो नाउ वी गो टू नेक्स्ट। अभी देखिए हमने क्या लिखा था बच्चों, दिस इज द एग्जांपल ऑफ थ्रोइंग डाई, बराबर है, 2 के लिए फेवरेबल था, 2 स्कोर के लिए 1 था, 3 के लिए 2 था, 4 के लिए 3 था। ये हमने कैसा किया था, यहां से काउंट करके लिखा था, बराबर है, 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2, बराबर है। तो यही मैंने यहां लिखा है 1 2 3 4 5 6, सेम एग्जांपल। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑल्सो वी हैड फाउंड आउट, 1/36, 2/36, 3/36, 4/36, 5/36, 6/36, 5/36, 4/36, 3/36, 2/36। समझ गए? अभी इसका सबका एडिशन करेंगे तो 1 आता है, बिकॉज डिनोमिनेटर, ये सिंप्लीफाई मत करो, डिनोमिनेटर कीप इट 36, एंड इफ यू ऐड 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + ये, यू विल गेट 36/36, एंड दैट इज 1। तो ये पीएमएफ है ही है, एक भी निगेटिव नहीं है यहां, और उसका एडिशन, अच्छा ये दिस इज 1/36, बराबर है, तो दिस इज पीएमएफ। ना क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, क्यूमुलेटिव मतलब क्या, आई एम गेटिंग स्कोर 2, उसका प्रोबेबिलिटी है 1/36, आई एम गेटिंग स्कोर 3 और लेस देन 3, तो ये दोनों का एडिशन हो जाएगा 3/36। आई एम गेटिंग स्कोर 4 और लेस देन 4, तो 4 और 3 और 2, तो इसका एडिशन हो जाएगा 1 + 2 + 3, सो 6/36।
आई एम गेटिंग स्कोर 5 और लेस देन 5, तो ये सबका एडिशन हो जाएगा. इट विल बी 10/36. दिस विल बी 15/36. This will be 21/36. This will be 26/36. This will be 30/36. This will be 33/36. मतलब क्या? I am having a probability of 33/36 for getting the score 10 और लेस देन 10. समझ गए? अभी 11 और लेस देन 11, इट विल बी 35/36 एंड दिस विल बी 36/36. दैट इज 1. प्रोबेबिलिटी मीन्स सर्टेनिटी. गेटिंग स्कोर 12 और लेस देन 12, 2 से कम नहीं आएगा, विल बी 1. समझ गए? दिस इज नोन एज क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. अभी यहां मैं क्या कर रहा हूं देखो, आई एम मल्टीप्लाइंग xi बाय pi. मतलब ये जो x है उसको मैं उसका प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर रहा हूं. क्यों कर रहा हूं? यू विल कम टू नो इन द नेक्स्ट स्लाइड. समझ गए? सो 2 into 1/36 विल बी 2/36. 3 into 2/36 will be 6/36. समझ रहे हैं बच्चों? 4 into 3/36 will be 12/36. 5 into 4/36 will be 20/36. 6 into 5/36. I am multiplying this column by this column. This column is pi, this column is xi. मतलब x multiplied by p. समझ गए? तो ये कितना आएगा? 20/36. फिर 30/36. उसके बाद में आएगा 42/36. सिंपल है. xi इंटू पी आई, ये कॉलम इंटू ये कॉलम. अभी ये क्या आएगा? 40/36. फिर ये क्या आएगा? 9 मल्टीप्लाइड बाय 4/36, दैट इज 36/36. 10 into 3/36, that will be 30/36. 11 into 2/36 will be 22/36. And lastly 12 into 1/36, that is 12/36. समझ गए? Now if you add this, इसको मैं अगर ऐड करूं तो दैट विल बी सिग्मा. सिग्मा xi pi. सिग्मा xi pi. क्योंकि xi को मैंने pi से मल्टीप्लाई किया तो मुझे ये कॉलम में हर एक रो मिल गया, और इसको मैं ऐड करूं तो यू विल गेट द आंसर एज, ये ऐड करो 2 + 6 + 12 + 20 + 30 + 42 एंड तक ऐड करेंगे तो यू विल गेट 252/36. समझ गए बच्चों? समझ गया इतना? ऐसा हमने क्यों किया ये हम लोग, आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट स्लाइड. बट कभी भी रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का एग्जाम्पल आएगा तो ये टेबल बनाने का, ये तो 2 कॉलम दिया होगा प्रोबेबिलिटी निकालने का, और समटाइम दे विल गिव x एंड p डायरेक्टली, देन यू हैव टू मेक दिस 3 कॉलम्स. समझ गए? अभी यहां मैं क्या कर रहा हूं? xi स्क्वेयर इंटू पी आई. तो इसी कॉलम को मैं फिर से xi से मल्टीप्लाई कर रहा हूं.
मतलब ये 2 का स्क्वायर इंटू पी आई, तो 4/36, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 2/36, 18/36, बराबर है। दिस इज एक्सआई स्क्वेयर इंटू पी आई। तो यहां एक्सआई पी आई है, इसको एक्सआई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्सआई स्क्वेयर हो जाएगा। सो यू गेट द आंसर 48/36। 100/36, 180/36, 294/36। How this 294 came? XI PI है 42/36, उसको मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया, बराबर है। 320/36, 324/36, ये 4 है। 300/36, मेथड इज सेम। 30/36 को मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, 242/36 एंड 144/36। अभी डिनोमिनेटर हमने 36 ही लिखा है, तो इसका सिग्मा एक्सआई स्क्वेयर इंटू पी आई। सिग्मा मतलब सबका एडिशन। ये जो लेटर है, दिस इज अ ग्रीक लेटर सिग्मा, दिस वन। तो ये अगर आप ऐड करेंगे तो ये आपको मिलता है 1974 डिवाइडेड बाय 36। 36 ऐसा ही है, 4 प्लस 18 प्लस 48 प्लस 100 प्लस 180 प्लस 294 प्लस 320 प्लस 324 प्लस 300 प्लस 242 प्लस 144। ये अगर हम लोग ऐड करेंगे तो हमें मिल जाता है 1974/36। समझ गए बच्चों? चलो, ये क्यों किया हमने? बिकॉज दे आस्क अस in any example, they ask, what they ask बच्चों? चलो, they ask expected value or mean of discrete random variable. तो expected value or mu. Expected value is also denoted as EX, capital E of X, is also denoted by mu of X, and that is given by simply sigma xi into pi। मतलब ये जो हमारा कॉलम था xi pi का एडिशन, दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। समझ गए? सो इट इज व्हाट? 252/36. So that is very simple. 252/36, and this answer you will get 7. It is the expected value of random variable, discrete random variable. समझ गए? तो हमें ये फॉर्मूला याद रखना है। कौन सा फॉर्मूला याद रखना है? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इज नथिंग बट सिग्मा xi pi। ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। और xi pi का सिग्मा हमें कैसा मिला? टेबल से डायरेक्टली मिला, बराबर है। चलो, देन they ask
what is variance of x? What is variance of x, which is denoted by VAR into bracket x. अभी इसका हमारे पास फॉर्मूला है, variance of x is equal to, ये फॉर्मूले का डेरिवेशन आपको करने की जरूरत नहीं है, सिग्मा xi स्क्वेयर p माइनस म्यू स्क्वेयर, म्यू तो हमको मिल गया 7, और ये सिग्मा xi स्क्वेयर pi, ये हमें ये दूसरा कॉलम का टोटल मिल गया 1974 अपॉन 36. What is this? This is nothing but sigma xi square pi, because this individually is xi square into pi. इसका एडिशन करेंगे ये सिग्मा 197436. तो variance x, how I will write down? फॉर्मूला तो सिंपल है. So variance of x is equal to sigma xi square pi, that is 1974 अपॉन 36 माइनस म्यू हमें मिल गया है, दिस इज नथिंग बट म्यू, बराबर है. तो 7 का स्क्वेयर करना भूलना नहीं. सो दिस इफ यू कैलकुलेट यू विल गेट, अभी ये पहला कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी 54.83 माइनस 49. अभी ये कैलकुलेट करने के लिए आप लॉग टेबल यूज कर सकते हैं, या एक्चुअली 4 से पहला डिवाइड करके 9 करके, दैट कैलकुलेशन यू शुड डू. तो दिस आंसर यू विल गेट एज 5.83. तो कौन सा फॉर्मूला दूसरा याद रखने का बच्चों? सिंपल फॉर्मूला है ये, variance इज इक्वल टू दिस. और ये दोनों हमको कहां से मिले? टेबल से मिले. न्यू इज स्ट्रेट वे टेबल से मिला 7, और यहां हमने ये स्क्वायर भी मिला हमको, एक्स स्क्वायर इंटू पी सिग्मा माइनस म्यू स्क्वायर. ये स्क्वायर करने का भूलने का नहीं, समझ गए बच्चों? एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सिग्मा. दिस इज अ स्मॉल लेटर एस इन ग्रीक लैंग्वेज, और यहां जो है इट इज अ कैपिटल लेटर. तो सिग्मा एक्स का फॉर्मूला कैसा है? बहुत ही सिंपल है. क्या है? सिग्मा एक्स इज इक्वल टू नथिंग बट, सिग्मा एक्स इज इक्वल टू नथिंग बट स्क्वेयर रूट ऑफ variance ऑफ एक्स. अभी variance का तो हमको मिल गया है 5.83. तो सिग्मा एक्स विल बी इक्वल टू स्क्वेयर रूट 5.83. अभी ये लॉग टेबल से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बट इन एग्जामिनेशन यू कम अप टू दिस स्टेज, डोंट वेस्ट योर टाइम एट दिस स्टेज इन कैलकुलेटिंग दिस. एट द एंड यू शुड नॉट मिस एनी क्वेश्चन. तो इसके लिए यहां तक ऐसा ही रख दो, बाद में अगर टाइम मिलेगा तो ये कैलकुलेट करो. लॉग टेबल से ये कैलकुलेट कैसा करने का, आई हैव मेड 2 प्यारे प्यारे वीडियोस ऑन लॉग टेबल फॉर योर बेनिफिट ऑफ सॉल्विंग द कैलकुलेटिंग एग्जाम्पल बाय यूजिंग लॉग टेबल. 2 वीडियोस है मेरा चैनल पे, देख लीजिए. समझ गए बच्चों? चलो, थैंक यू.